Art requires imagination. It requires creativity. Creativity requires experience, and experience comes from your life. And your life is expressed in your art. Today, while the whole world is reeling with the pandemic of corona, it is only human desire to live, the available technology, and the beautiful experiences of the past which is helping to push life to the next step. Greetings to one and all present here. I'm extremely privileged to get the opportunity today to welcome the galaxy of intellects, invited guests, parents, teachers, and my dear students on behalf of GK Gurukul and GK Kids. We all are gathered here on the virtual platform for our annual concert to motivate and inspire the young minds to showcase their talent. This is a highly important occasion for everyone. Annual Day is a day which is looked forward with utmost anticipation and excitement. It is an occasion that spreads joy and serves as a platform for students to exhibit their unique talents and build their confidence. This day kindles the spirits of togetherness through which students showcase their talents despite the difficult times of today's pandemic situation. This year, the theme for Annual Day is Sahitya Kirti, Indian Literature, which will be presented meticulously through a spectacular performance by the students of pre-primary to grade 10. India has 22 officially recognized languages, and a huge variety of literature has been produced in these languages over the years. Hindu literary traditions dominate a large part of the Indian culture. The Vedas are considered to be one of the most sacred scriptures of the Hindu religion. They are claimed to be among the world's oldest scriptures. There are 4 Vedas: the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sam Veda, and the Athar Veda. Veda is said to be the treasure vault to wisdom and knowledge. It is also considered that Vedas are eternal and vibrate in the outer dimension of the world of the Brahmins. Apart from the Vedas, which are sacred form of knowledge, there are other works such as Hindu epics Ramayana and Mahabharata, treatises such as Vastu Shastra in architecture and town planning, and Artha Shastra in political science. The most famous works in Sanskrit are the Vedas, Upanishads, and Manusmriti. Hindu literature started as religious and philosophical poetry in the medieval periods in dialects like Awadhi and Brij. The most famous figures from this period are Kabir and Tulsidas. आदर, अभिनंदन, आभार। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। उत्कृष्ट लेखन शैली, शब्दों का काव्यगत प्रवाह और मनोहारिणी वाक्य संयोजन, मानो शिव जी की जटा से माँ गंगा अपनी लहरों को उद्वेलित कर रही हो। ऐसी अद्भुत प्रतिभा के धनी सभी साहित्य शिरोमणियों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आगाज करते हैं गुरुकुल के इस उत्सव का, अनुभूति साहित्य कीर्ति का, जो आप लोगों की उपस्थिति से प्रफुल्लित है, विभोर है। चलता तो कारवां भी साथ साथ है, आप मिलकर चलेंगे तो बात ही कुछ और होगी। शब्दों की अनुभूति भी सुखद होगी, साहित्य की कीर्ति भी उज्जवल होगी। वैसे कहते हैं, जब कल्पना अनुभव में बदलती है तो भाषा साहित्य का सृजन करती है। कहते हैं, जब कल्पना अनुभव में बदलती है तो भाषा साहित्य का सृजन करती है, दर्शाती है एक बिंब जो भावों और विचारों को लोगों के हृदयों में स्पंदित कर देती है। साहित्य अर्थात समाज का सजीव प्रतिबिंब। साहित्य अर्थात समाज का सजीव प्रतिबिंब, जहाँ शब्द भी चित्रित होते हैं और भाषा सभी के मनों में अमिट छाप छोड़ जाती है। और ऐसे में जब बात भारतीय साहित्य की हो तब तो कुछ बात ही अनूठी है। प्राचीनता की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा समृद्ध, हिंद महासागर से भी गहरा, हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा, ब्रह्म की कल्पना से भी अधिक सूक्ष्म है भारत का साहित्य, जहाँ हर बोली, हर भाषा का अपना एक स्वतंत्र और प्रखर वजूद है, अस्तित्व है। तभी तो कहते हैं, अद्भुत है जहाँ शब्दों का संसार, वह और कोई दूजा नहीं बल्कि है भारत का काव्य संसार, बल्कि है भारत का काव्य संसार। धन्यवाद। सरस्वती वंदना। वर दो माता शारदे, विद्या का दो ज्ञान, ज्ञान बुद्धि से युक्त हो, मिटे सकल अज्ञान। माँ सरस्वती विद्या की देवी, किसी भी शैक्षिक कार्य को आरंभ करने से पूर्व माँ सरस्वती का ध्यान अनिवार्य है। तो आह्वान करती हूँ श्वेतवर्णी विद्यादायिनी माँ सरस्वती का, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर शुभ
त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। देश की संस्कृति का निर्वाह करते हुए वंदना करते हैं श्री गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अरे पिंकी, इतनी सारी किताबें उठाकर कहाँ जा रही हो? ऐसा लगता है किसी बुक फेयर से बाहर आ रही हो। हाँ चाचा जी, आपको नहीं पता, जी के गुरुकुल में साहित्य कीर्ति सम्मेलन चल रहा है। साहित्य कीर्ति सम्मेलन? ये क्या है? साहित्य कीर्ति सम्मेलन जी के गुरुकुल का एनुअल फंक्शन। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों वहां चलते हैं। हाँ चलो। चाचा जी, ये
संस्कृत लैंग्वेज आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आप बता सकते हैं ये कैसी भाषा है और यहाँ क्या हो रहा है? ये वेद क्या होते हैं? पिंकी, यह संस्कृत भाषा है, सभी भाषाओं की जननी। इसी से तो संसार की सारी भाषाएं बनी है, इसलिए इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी सुनती हूँ। आखिर हमारी संस्कृत भाषा को जननी क्यों कहा गया है? आप मुझे ये भी बताइए, ये वेद क्या होते हैं? जरूर, मैं तुम्हें बताता हूँ, साथ ही दिखलाता भी हूँ। चलो हम दोनों मिलकर देखें। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। शांति शांति शांति। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। वो बचपन भी कितना सुहाना था, जिसका रोज एक नया फसाना था। कभी पापा के कंधों का तो कभी माँ के आंचल का सहारा था। कभी बेफिक्र मिट्टी का खेल तो कभी दोस्तों का साथ मस्ताना था। जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हें देखकर तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। अरे वाह, फिर तो आपको बचपन की कहानियां भी याद होंगी। आपने कभी तेनालीराम की कहानी सुनी थी? अरे पिंकी, मेरा मनपसंद है वो तो। फिर तो बहुत मजा आएगा। आज आपके तेनालीराम यहाँ भी है, साहित्य कीर्ति में। क्यों ना मैं और आप एक प्रोग्राम साथ में देखें? मैं तो उत्सुक हूँ देखने के लिए।
तेलुगु के लोकप्रिय कवि कुशाग्र बुद्धि वाले तेनाली राम की कहानी कभी ना कभी तो ज़रूर सुनी होगी। बचपन में स्कूल की किताबों में, दादी और नानी की मुंह ज़बानी यादों में कहीं ना कहीं इन कहानियों का जिक्र तो होता ही आया है। आज हम आपको तेनाली रामा के जिंदगी के बारे में कई सारी रोचक बातें बताने वाले हैं। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय और तेनाली राम की जोड़ी अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान मानी जाती है। तो देखते हैं आज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम कैसे पहुंचे और अपनी बुद्धि से दिल कैसे जीत लिया। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों को आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज का वार्षिक कार्यक्रम तेनाली रामा नामक एक प्रसिद्ध विदूषक के जीवन पर आधारित है। कर्नाटक में हम्पी नाम के खूबसूरत खंडहर विश्वविख्यात विजयनगर साम्राज्य के वैभव का मौन प्रमाण है। सम्राट कृष्णदेवराय के शासन काल में संगीत, साहित्य आदि कलाओं के विकास में चार चांद लगे हैं। तेनाली राम स्वर्ण युग के एक जाने माने हास्य कलाकार थे और राजा कृष्णदेवराय के 8 रत्नों में से एक थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अरे ये कौन सो रहा है? ये कंबल बारिश में भीग कैसे गया? अरे रामा, तुम क्यों सो रहे हो? माँ, रात को अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं बाहर आकर सो गया। ठीक है, मगर रात को जब भी बारिश हुई तब तुम अंदर क्यों नहीं आए? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं उठ नहीं पाया, इसलिए यही सोता रहा। हे भगवान, अभी से इसका ये हाल है तो पता नहीं आगे जाकर क्या करेगा। इतना आलसी लड़का है। चल जल्दी से उठ और नदी पर जाके स्नान करके पाठशाला जा। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। नहीं, मैं खाना नहीं दूंगी, पहले तू नहाने जा। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दो, फिर जाऊंगा। तू बहुत आलसी है, बड़ा होकर क्या करेगा? रामा, ओ रामा, जल्दी उठ और नदी पर जाके स्नान करके सीधे घर आना, कहीं रास्ते में सो मत जाना। तेनाली राम बहुत मुश्किल से आलस में चलता हुआ नदी पर पहुंचता है और वहीं फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक ऋषि माला लेते हुए जाप कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मंत्र का जाप कर रहे हैं। काफी देर बाद जब रामा घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ उसे नदी किनारे देखने आई। रामा की माँ देखती है कि तेनाली राम सो रहा है। वो उसे उठाती है, स्नान कराती है और कहती है कि तू फिर से सो गया, जल्दी उठ। तू दिन भर सोता क्यों रहता है? कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या तू पिछले जन्म में कुंभकर्ण था? अरे तू फिर से सो गया, जल्दी उठ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना।
ये ले, केला खा और पाठशाला जा। माँ केला छील कर दो ना। नहीं, मैं नहीं, अपने आप ही छील कर खा। पर रामा क्योंकि आलसी था इसलिए वो केले को बिना छीले छील के समेत खा गया। केला कहाँ है? माँ मैंने खा लिया। ठीक है, छिलका कहाँ है? माँ मैंने छिलके के साथ खा लिया क्योंकि तूने छील के नहीं दिया। हे भगवान, तू छिलके समेत खा गया। तू कभी नहीं सुधरेगा। अगर सीधे पाठशाला नहीं गया तो तुझे घर वापस आकर खाना नहीं मिलेगा। हे भगवान, मैं तो बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इतने आलसी जीवन में क्या करेगा। रामा का पढ़ने में मन नहीं था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। अरे तेनाली, तुम कब आए? बस अभी अभी आया गुरुजी। तुम खुद तो पढ़ नहीं रहे हो और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। चले जाओ यहाँ से। जब तुम्हारा पढ़ने का मन हुआ तभी पाठशाला आना। तेनालीराम पाठशाला से चले जाता है, नदी किनारे जाकर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वही ऋषि मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम 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 ओम। रामा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी परेशान रहती है और तुम दिन भर सोते ही रहते हो। तो मैं क्या करूं गुरुजी? मुझे बहुत नींद आती है। मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, तो तुम काली माता के मंदिर जाओ, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मंदिर पहुंचकर रामा देखता है कि देवी माँ के सामने बहुत सारे फल और लड्डू रखे हुए हैं। रामा सोचता है और कहता है, वाह, देवी माँ के सामने बहुत सारे फल और लड्डू रखे हुए हैं, पर वो तो खा ही नहीं रही है, क्योंकि माँ ने कहा था कि अगर मैं पाठशाला नहीं गया तो वह आज मुझे खाना नहीं देगी। तो चलो यही खा लेता हूँ। वहाँ पर केले और लड्डू खाने लगता है और वहीं पर सो जाता है। तभी रात को उसके सपने में उसे देवी माँ के दर्शन होते हैं। रामा, तुम यहाँ क्यों सोए हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? माँ मुझे घर पर बहुत डांटती है, इसलिए मैं नदी किनारे गया। वहाँ पर मुझे एक ऋषि ने कहा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे। अच्छा, तुम्हें वरदान चाहिए? रुको, अगर तुम दही वाली कटोरी लोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, और अगर तुम शहद वाली कटोरी लोगे तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वाह देवी माँ, मुझे दोनों चाहिए। रामा, तुम बहुत चतुर हो तथास्तु। तुम अपने जीवन में धन और ज्ञान दोनों ही पाओगे। दूसरे दिन रामा सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके घर लौटकर पूजा करने लगता है।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य मेरे बेटे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे बेटा, तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के बन गए हो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये लो, केला खा लो। जाओ, अब तुम केले के छिलके को फेंक दो। नहीं माँ, ये छिलका मैं गाय को दूंगा, उसका पेट भर जाएगा। धन्य हो देवी माँ, धन्य हो। रामा अपने सपने वाली बात माँ को बताता है और माँ देवी माँ को धन्यवाद करती है। इस प्रकार एक आलसी तेनाली रामा नामक बच्चा अपनी चतुराई से देवी माँ से वचन प्राप्त करके जीवन वर्धन, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि अपनी बुद्धिमत्ता से सब लोगों को प्रभावित करता है। यह संसार तेनाली रामा को युगों युगों तक याद रखेगा। अरे चाचा जी, ये तेनाली तो बड़ा ही होशियार निकला। तेनाली तो होशियार ही था। पिंकी, क्या तुमको कहीं से गोविंद भक्ति की आवाज सुनाई दे रही है? जी चाचा जी। तो चलो चलते हैं गोविंद भक्ति की रस को चखने। अरे चाचा जी, आप तो गोविंद भक्ति में एकदम तल्लीन हो गए हैं। अरे मुझे छोड़ो पिंकी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी तेनाली रामा की हास्य रचनाओं में ही डूबी हुई हो। जी चाचा जी। तो चलो मैं तुम्हें तेनाली रामा की एक कहानी दिखाता हूँ। Many years ago in southern India, there was a kingdom in Vijayanagar. In the kingdom was one king. He was called Krishna Dev Rai. In his kingdom was the most talented, smart, famous minister called Tenali Ram. He was clever and smart, which made him world famous.
He came from a village called Tenali, and his name being Raman, he is called Tenali Raman. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namaskar राजपुरोहित जी. नमस्कार. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. मैं रमन तेनाली से आया हूँ. तो क्या? मुझे राजा कृष्णदेव की सेवा करने की बहुत इच्छा है. क्या आप मुझे उनके दरबार में प्रवेश दिला सकेंगे? जीवन के 25 साल शिक्षा प्राप्त की, तपस्या की, तब जाकर महाराज के दरबार में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है. और मेरे जैसे ऐसे ही साधना करने वाले सैकड़ों लोग हैं, पर उन्हें आज तक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ नहीं है. पर तुम कौन हो भाई कि महाराज तुम्हें अवसर दे हैं? तुम्हारा नाम तो मैंने कभी सुना नहीं. मैं जानता हूँ कि मैं छोटा मुंह और बड़ी बात करता हूँ, पर आप तो इतने श्रेष्ठ विद्वान, वो भी महाराज के मन पसंद. सोचा देखता हूँ आपसे पूछकर, आखिर आपकी सेवा मुझे ही नहीं किसी को भी दरबार में प्रवेश करना कैसे संभव हो सकता है. सुनिए, आपने मन पर लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं. राज दरबार में बुलवा ले. हाँ ठीक है, तुम्हारा जो कुछ है राज दरबार में देखेंगे. अरे ये तो यहाँ आधम का, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना आगे चलकर मुझे ही महंगा पड़ जाएगा ये. राजपुरोहित जी आप रुकिए, मैं देखता हूँ. सेनापति जी हुजूर, क्या काम है? देखो वो जो दुबला पतला इंसान राजमहल की तरफ आ रहा है ना, उसी राजमहल में आने मत देना. मुझे तो वो डर लगता है. जैसे आपकी आज्ञा. तेनाली रामन राजमहल के प्रवेश द्वार पे आकर उसी सेवक से कहने लगता है, मैं रमन तेनाली से आया हूँ. इस तरह मार क्यों रहे हो? मुझे राजपुरोहित ने मिलने के लिए बुलाया है. राजपुरोहित ने आपको निकल बाहर करने को कहा है. चलो चलते बनो. इस प्रकार तेनाली रामन को किसी भी प्रकार राज दरबार में प्रवेश नहीं मिला. तब भी तेनाली रामन निराश नहीं हुए. हाँ, तुम उदास मत हो. तुमको अपने दरबार में रखने में ही उनका भला है. महाराज अवश्य तुमसे मिलेंगे. एक दिन सवेरे सवेरे तेनाली राम को नदी किनारे राजपुरोहित स्नान करते हुए दिखाई दिए. तब गुंडप्पा ने तरकीब सुझाई. अरे वाह, इतना अच्छा अवसर मिला है. प्रचोदया. अरे राजपुरोहित, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? वस्त्र तो हमारे पास है राजपुरोहित जी. हाँ, दे तो रहा हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे कंधे पर बैठा के राज दरबार ले जाना होगा, तभी आप वस्त्र धारण कर पाएंगे राजपुरोहित जी. राजपुरोहित तेनाली को अपने कंधों पर उठाकर दरबार की ओर चलने लगे. वहाँ सारे लोग आसपास में हंसने लगे.
तेनालीराम की शर्त कबूल करने के सिवा राजपुरोहित के पास और कोई पर्याय ही नहीं था। ये सब क्या है? ये तो हमारे राजपुरोहित जी है। ये कौन है जो उनका मजाक उड़ा रहा है? सिपाही! क्या आज्ञा है महाराज? आप नए ही लग रहे हैं। मैं सेनापति श्रीशांत का पुत्र शिवर्धन हूँ। आज ही आपकी सेवा में लगा। कोई ठग अपने राजपुरोहित के कंधे पे बैठ गया है। उसे नीचे उतारकर उसकी अच्छी पिटाई करो। राजपुरोहित को सम्मान के साथ ले आओ। वैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा कृष्णदेव राय को गुस्से से अपने सेवक को कुछ कहते हुए देखकर तेनालीराम ने राजपुरोहित के कंधे से नीचे उतरकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, मुझसे भूल हो गई। अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करना गलत बात है। मुझे प्रायश्चित करना है। अब मैं आपको अपने कंधे पर बिठाता हूँ और पूरे नगर में घुमाता हूँ। तेनालीराम ने राजपुरोहित को लेकर महल की तरफ जाने लगे। जिस तरफ से सेवक आ रहे थे उसी तरफ से तेनालीराम ने चलना शुरू किया। चलो नीचे उतरो। कौन हो तुम और मुझे नीचे उतरने को कह रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैं राजपुरोहित हूँ। मारना है तो तेनाली को मारो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आइए राजपुरोहित जी, दरबार में चलते हैं। हाँ चलो चलो। कौन हो तुम और राजपुरोहित के बदले तुम कौन आ गए? बहुत चतुर लगते हो। महाराज, मैं तेनाली गांव का रमन हूँ। उसके बाद अब तक की सारी बातें बताकर तेनाली ने कहा, महाराज, अभी मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सत्य है। अब आप मुझे जो भी सजा देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तेनालीराम की बुद्धि, विनम्रता और निर्भयता को देखकर राजा अति प्रभावित हुए और बोले, हा हा हा, वाह तेनालीराम, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे जैसे मनुष्य की हमें बहुत आवश्यकता है। तुम अब यही रहना। आज मैं धन्य हो गया। मेरा सपना साकार हो गया। तुम्हें पता है पिंकी, हमारी टीचर तेनालीरामन की कहानियों के साथ साथ वीरों की कहानी भी सुनाती थी। कैसे हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। राइट चाचा जी, मेरी टीचर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। देश का सम्मान करना, तिरंगे की शान बढ़ाना। हाँ चाचा जी, हमारी टीचर भी हमें यही सिखाती है। हमेशा नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज हम यहाँ जी के गुरुकुल में यही देखेंगे। चलो देखते हैं। Dear audience, close your eyes for a moment, thinking about our national flag Tiranga and our motherland. Thousands of martyrs and patriots have suffered and sacrificed themselves. Today, all present on this virtual platform can feel the immense patriotism in the next masterpiece of a musical performance presented by GK Gurukul students. On the energetic song, we will get goosebumps while listening and watching it. Huge respect to our selfless army personnel for providing us the protection and assurance that we need whilst sacrificing theirs. कांधे पे सूरज,
टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। एक बात कहूँ पिंकी, जी जरूर। तुमने तो आज मुझे मेरे बचपन में ही भेज दिया है। दोस्तों के साथ खेलना, मम्मी पापा से जिद करना और उनकी उंगली पकड़कर मेले में जाना, सच कितना मजा आता था। मैं तो रोज मम्मी पापा से जिद करती हूँ और वो प्यार से मेरी बात मान भी जाते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ के बच्चे किन लम्हों की और कैसे समय की बात करने वाले हैं। वो बचपन भी कितना सुहाना था, जिसका रोज एक नया फसाना था। कभी पापा के कंधों पे तो कभी माँ के आंचल का सहारा था। कभी बेफिक्र मिट्टी के खेल की तो कभी दोस्तों का साथ मस्ताना था। जो छूट गया उसको क्या मलाल करे, जो हंसी ले चल उससे ही सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करे। हाँ, ये वक्त ही तो है जिसके गुजर जाने की प्रार्थना लिए आपके सामने आ रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे बच्चे। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदलकर आई है, माना मौत चेहरा बदलकर आई है। माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रास्तों पे रुके बैठे हैं। लोग दरवाजों पे रास्तों पे रुके बैठे हैं। कोई घबराए है, सहमे है, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन न रख, मगर यकीन न रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सुन, मोहल्ले वीरान है। बाजार खाली, सड़कें सुन, मोहल्ले वीरान है। खौफ बरपा है हर तरफ, लोग हैरान है। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर ना समझ है
जो इंसान को हरा नहीं आया। इतिहास गवाह है कि ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है कि ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। चाचा जी, वक्त, ये शब्द तो मुझे जादू ही लगता है, बिल्कुल मेरे दादी के जादू जैसा। आपको पता है, मेरे दादी के पास एक जादू का खजाना है। आप कोई भी कहानी पूछ लो, वो झट से सुना देती है। आपको सुनना हो तो आप भी आ सकते हैं। भला दादी माँ की कहानी किसे अच्छी नहीं लगती। दादी माँ अपने अनुभव से कहानी सुनाती है। वह तुम जैसे नटखट बच्चों से प्यार भी करती है और जिंदगी के मायने अपने कहानियों से सुना देती है। आओ सुनते हैं। कहानियों का पिटारा किसे नहीं अच्छा लगता, और जब दादी माँ इसे लेकर आई हो तो फिर तो उसमें ज्ञान का भंडार और इंद्रधनुषी रंगों का अद्भुत संसार भी होगा। फिर देर किस बात की, चलो चले देखे आज दादी माँ क्या सुना रही। हिंदी में आओ कहानी सुनो 63 साल की। आओ कहानी सुनो 63 साल की। ये कहानी अनोखी निराली है, ये घर घर की बात जी। कहानी सुनो 63 साल की। लाखों से मेहनत करा के अकेला खाता है 53 साल में। लाखों से मेहनत करा के अकेला खाता है 53 साल में। मेहनत करेंगे, बांटेंगे, खाएंगे हिल-मिल के 63 साल में। मेहनत करेंगे, बांटेंगे, खाएंगे हिल-मिल के 63 साल में। आओ कहानी सुनो 63 साल की। मेहमानों को देखा के बंद दरवाजे करते हैं 53 साल में। मेहमानों को देखा के बंद दरवाजे करते हैं 53 साल में। स्वागत करेंगे बड़े प्रेम आदर से मेहमान का 63 साल में। स्वागत करेंगे बड़े प्रेम आदर से मेहमान का 63 साल में। आओ कहानी सुनो 63 साल की। रोटी के टुकड़े को रोते तरसते हैं मोहताज 53 साल में। रोटी के टुकड़े को रोते तरसते हैं मोहताज 53 साल में। नदियाँ बहेंगी दूध नहीं घी के आंगन में 63 साल में। नदियाँ बहेंगी दूध नहीं घी के आंगन में 63 साल में। आओ कहानी सुनो 63 साल की। दिल्ली की म्याऊं, दिल्ली की म्याऊं से बच्चे हमारे डरते हैं 53 साल में। शेरों से पंजा, शेरों से पंजा लड़ाएंगे बालक भारत के 63 साल में। आओ कहानी सुनो
कपटी कलंकी दगाबाज पलते हैं 53 के साल में। कितने ही कपटी कलंकी दगाबाज पलते हैं 53 के साल में। घर घर में गांधी घर घर जवाहर चमकेंगे 63 के साल में। घर घर में गांधी घर घर जवाहर चमकेंगे 63 के साल में। ओ आओ आओ कहानी सुनो 63 साल की। ये कहानी अनोखी निराली है, ये घर घर की बात जी। ओ आओ आओ कहानी सुनो 63 साल की। इन कहानियों में तो कितने सारे रंग हैं चाचा जी। जादुई रंग, कहानियों के रंग, लाल, पीले, हरे, नीले रंग। इनमें से आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे जिंदगी का रंग पसंद है, जिसमें हम अपने मन चाहे रंग भर सकते हैं। कभी लाल, कभी पीले, कभी हरे, चटकीले पीले। चलो आज इन रंगों के इंद्रधनुष को लाइव देखते हैं। हाँ चलो चाचा जी, चलें। अरे पिंकी, रंग है तो संस्कृति भी है, और ढेर सारे रंगों से संस्कृति सजी हुई है। वो कैसे चाचा जी? अगर तुम्हें ये समझना है तो अगला प्रोग्राम गौर से देखना, तुम्हें पता चलेगा संस्कृति कितने सारे रंगों से सजी हुई है। अच्छा, फिर तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions, and values. The rich heritage of India, one of the world's oldest civilization, in an all-embracing confluence of legend, tradition, and customs. The highlights of the Indian heritage lie in its treasure of its art, architecture, classical dance, music, flora and fauna, and the innate secular philosophy of its people. A beautiful combination of this will be presented by G.K. Gurukul. नमस्ते प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि हम सभी ने कभी न कभी रश्मि रथी कविता के बारे में सुना होगा। यह कविता एक महाकाव्य है जिसे 1952 में कवि राम भाई सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। यह महाकाव्य
अविवाहित रानी कुंती के पहले पुत्र कर्ण पर आधारित है। उनका जन्म सूर्य देव की आशीर्वाद से हुआ था। जिस तरह से दिनकर जी ने कर्ण की कहानी को नैतिक दुविधाओं में फंसे मानवीय भावनाओं के सभी रंगों के साथ प्रस्तुत किया है, वह बस अद्भुत है। शब्दों का चयन और भाषा की शुद्धता प्राण पोषक है। आज मैं भार्गवी भावसार और मेरे सहपाठी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं इस महाकाव्य का तीसरा भाग, कृष्णा की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संखार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरीर सरसिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी में आते। जीहा से कंठी ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगते हैं सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तूने को साध नहीं सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहीन प्रकर। फणशेष नाग का ढोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा,
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेगा, विश्व बाण बूंद से छूटेगा, वाय सिंगाल सूख लूटेगा, सौभाग्य मनुज के फूटेगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमोदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। अब समझी चाचा जी, जहाँ संस्कृति है वहाँ रंग है, जहाँ रंग है वहाँ रौनक है, यानी जिंदगी। बिल्कुल सही। अरे वाह, मेरी पिंकी तो बड़ी सयानी है। यस चाचा जी, जिंदगी की यही बात तो आज हमें सभी को समझानी है। और देखिए जी की गुरुकुल में क्या हो रहा है। जिंदगी खुशियों का पैगाम लेकर आई है, आओ समेट ले इन्हें अपनी बाहों में। ये जीवन के जादुई रंग लेकर आई है, तुम भी मुस्कराओ, खुशियां मनाओ। ये जिंदगी है, प्यार का आशियां लेकर आई है। खुशी
अरे वाह पिंकी, तुमने तो आज साहित्य कीर्ति का अच्छा अनुभव कराया। चाहे वो तेनाली रामा हो, चाहे बच्चों के द्वारा की हुई लाइव पेंटिंग या महाभारत काल का अनुभव, सब कुछ अलौकिक था। चाचा जी, जब आ ही गए हैं जी के गुरुकुल के प्रांगण में, तो क्यों ना बच्चों का योगा प्रदर्शन देखकर चले? ठीक है, चलो पिंकी। The next performance, which is a dance which talks about the fears and insecurities, but still takes us to the dreamland. This performance will also promote the idea that every child should be treated with love, respect, and despite his or her weaknesses. Of course, the song inspires us to be simple yet courageous in the life, and our little students makes it more beautiful with their expressions and beautiful movements. देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। अरे वाह पिंकी, मुझे तो पता ही नहीं था कि साहित्य कीर्ति में हमें इतने सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। जी चाचा जी, परंतु ये यहीं पर खत्म नहीं होता। कल साहित्य कीर्ति में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे, चाहे वो ज्योतिबा फूले जी के बारे में हो या फिर कबीर के दोहों के बारे में।